Okay, dear. In the last class, we have seen what is binomial distribution, right? And moreover, I have told you about what is this random variable. Random variable, I have given notes also, and moreover, I have told you what is random variable. I have told you that there are two types of random variable known as discrete and continuous. You have written the notes for that. No, I've given notes for that. Please try to make it interactive. I won't able to understand no if you're not talking. Hello. Yes, ma'am. Yes, ma'am. For that I have given or not? Whether No, you ma'am. I have not No, given ma'am. random variable. No, ma'am. No, ma'am. No. Are you sure? Yes, ma'am. And Okay, no problem. I'll tell you first what is random variable, right? First, I'll tell you what is random variable before getting into what is Poisson distribution, right? In the last class, we have seen what is Poisson distribution. Random variable are two types. The first one is discrete random variable and continuous random variable. Continuous random variable. Discrete random variable means where discrete random variable means when the values what you are taking is very small values like 0, 1, 2, 3. Likewise, these values you are taking in case of discrete random variable. For example, like if you are taking like number of accidents, the chances of getting accidents are very rare, not very frequently. No. So these all things are coming under discrete random variable. Or we can say number of spelling mistakes. Number of spelling mistakes will be coming under discrete random variable, right? So when we take small values like 0, 1, 2, 3, that is coming under discrete random variable. And when we take when we take more values, otherwise we can say that if random variable takes all values within a certain class interval, when all values it takes all values within a certain class interval. For example, a consumption of milk a consumption of milk by a family for 1 month, for 1 month or 2 months. Okay, in case if the milk they are consuming is 2 kg into 30 days it will be coming, likewise 60. So when it this such kind of value comes, that will be coming under continuous random variable. And when small values comes, that is coming under discrete random variable, right? So so in the last class I've told you about binomial. So you are clear with binomial distribution, right? So in case of yes, binomial distribution, we have seen it is otherwise known as Bernoulli distribution. And I've told you about the formula also, how to find out, right? Now we'll be moving Yes. on to the next ma'am. topic known as Poisson distribution. I've told you that in case of this theoretical distribution or probability distribution, theoretical distribution or probability distribution, we have three important concepts known as binomial, Poisson, and Normal. yeah, and normal. Binomial, Poisson, and normal, right? So binomial we have completed. Now we are moving on to the next topic known as Poisson. What is Poisson distribution? You are able to understand? The screen is visible. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am. Okay. Yes, ma'am.
So now we will see the second one known as Poisson distribution. Poisson distribution, right? So as I've told you about discrete random variable and as well as a continuous random variable, Poisson distribution is a discrete random distribution. It is a discrete random distribution. I've told you about P and Q, right? I have told you about success as well as failure. In case of binomial distribution, the same we are going to see here also. यहाँ पे भी हम same देखेंगे. The thing is, what in case of Poisson distribution, what happens? In case of Poisson distribution, as I've told you, it is a discrete probability distribution. It is known as discrete probability distribution, and it is widely used in statistics. This was being introduced by a French mathematician. किसने introduce किया? French mathematician ने introduce किया. ठीक है? French mathematician introduced किया, and his name was Simon Denis Poisson. So now you are clear why the name Poisson distribution, because of his name, that this name has come since it was being introduced by Poisson. His full name was Simon Denis Poisson, and it was being introduced by him in the year 1837. Right? It was being introduced by him in the year 1837. This distribution known as Poisson distribution, it is expected in that cases where the chances of success for any event is very rare. Like we have seen in case of P देखा हमने, Q देखा, right? जहाँ पे the chances of success is very rare, जहाँ पे success होने का chances बहुत rare है, that is coming under Poisson distribution. तो Poisson distribution हम लोग कहाँ use करेंगे? We will be using in that task or in that cases where any individual event being successful, is very rare occurrence hota hai. Like if I am asking you what is the accident number of accidents, we can at least मुंह से हम बोल सकते हैं हाँ एक एक्सीडेंट हुआ, दो एक्सीडेंट हुआ, तीन एक्सीडेंट. We cannot say that there is innumerable accident took place which we cannot count, right? या 30 40 50 हम नहीं बोलते हैं. मंथ में कितने बार हुआ, हो सकता है एक हुआ या नील एक्सीडेंट हुआ या 0 हुआ या 1 हुआ या 2 हुआ या 3 हुआ. तो when the chances of any event being successful is very rare, that is being seen in case of Poisson distribution. So therefore this Poisson distribution is being used in order to describe what event. एक Poisson distribution हम क्यों use करते हैं? Rare events को describe करने के लिए, to describe rare events, right? So these Poisson distribution is being studied. Basically, it is being studied in those cases where the success of any events are very rare. Like I've told you about accident, number of printing mistake also we can take. ठीक है? We can take number of printing mistakes. अभी एक book है, book में printing mistakes क्या होगा? वो कम होगा because it is being checked so many times before the final print is being taken. So number of printing mistakes might be one printing mistake or two mistake or three mistake, or we can say nil mistakes. So likewise the chances are very, we cannot talk like 100 mistake, 200 mistake हम नहीं बोल सकते. If it comes, it will be coming under continuous random variable. Okay, so this is known as Poisson distribution. Right, हमने in case of binomial में हमने एक फॉर्मूला देखा था. क्या फॉर्मूला देखा था? PR is equal to NCR PR नहीं Pn minus R QR divided by R exponential. This was the formula we have seen, main formula for any term. मतलब क्या है? ये जो formula है, this formula we can use for any term, है ना? In case if you wanted to know about one success, two success, three success, four success, whatever it is, so this was the formula which you have used there. Now in case of Poisson distribution, what we are going to use is in case of Poisson distribution, we are going to use another formula, right? So how the Poisson distribution is being defined? Let us see how the Poisson distribution is being defined. Poisson distribution is being defined as, I'm just writing the formula. देखिए यहाँ पे भी we are using R as we have used in case of binomial. Binomial में हमने जैसा use किया वैसे हम यहाँ पे भी use कर रहे हैं, but the formula is slight different. ठीक है? E to the power minus m to the power R divided by R exponential. देखिए you can see यहाँ पे ये जो था ये क्या था? Binomial coefficient था. ये क्या था?
This was probability for success and Q क्या था? Probability for failure. This is what we have seen in case of in case of what? Binomial, right? तो यहाँ पे यहाँ पे what we are going to use is this is the formula what we are going to use. अभी R जैसा मैंने यहाँ पे आप लोगों को what meaning of R बताया, all remains the same here also. The only difference is what we are just um, थोड़ा सा formula में बदलाव है. There is a change in the formula. Okay. As I told you, R means what? R means number of success. है ना? I've made you clear regarding what is P and what is R. You should not get confused within P and R, right? P refers to probability for success, Q refers for probability for failure, R refers for number of success, right? तो अभी यही जो बताया ना number of success, ये क्या रहेगा? Rare रहेगा. In case of this probability distribution, this will be very rare. Rare means what? हो सकता है कि occurrence nil है, occurrence 1 है, occurrence 2 है, occurrence 3 है. Likewise it will go. Okay. And what ये हो गया? This you are clear with what is it, right? This you are clear with what is it. Now you can see that this one, ठीक है? This one is M. M is equal to what? M is equal to mean. M is equal to mean. Mean refers to what? Mean refers to M refers to what? M refers to mean of Poisson distribution. ठीक है? अभी हमने in case of binomial we have seen mean is equal to NP. देखा था, remember constants में we have seen mean is equal to NP. यहाँ पे E is equal to minus M and M refers to what? N refers to mean of the Poisson. The same formula we are using we will use here also. M is equal to NP. Means जो formula हमने binomial में देखा था, the same formula is here also. M is equal to NP. और otherwise हम इसको क्या बोलेंगे? Average number of occurrences. क्या बोलेंगे इसको हम? Average number of occurrences. Occurrences of an event. It may be 1, 2, 3, whatever. So mean means what? Whenever we are talking about mean is your average only. ठीक है? As I've told you, there are different averages. यहाँ पे हम mean use करते हैं. Mean जो है that we are using for average. ठीक है? So इतना clear है आपको? अभी जैसे हमने Yes, ma'am. देखा था ना? Yes, ma'am. In case of binomial, this is effective. No, you are able to understand. No, because ये Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. okay. So यहाँ पे you can use this formula. Okay, this is the formula for the Poisson distribution. This is the formula for the Poisson distribution. Now, like we have seen the terms. No, जैसे हमने terms देखा था, किसमें देखा था? Binomial में देखा था. Binomial में what we have seen? Q plus P to the power n. इसको हमने expand किया था. इसको expand किया था ना with term. n plus 1 terms हमने इसको expand किया था. Likewise, here also for this formula we can use the binomial for the terms for Poisson distribution. It is being written as e to the power minus m 1 plus m plus m square divided by 2 exponential. अभी यहाँ पे क्या है? 1 exponential है, ठीक है? Plus m power 4 3 exponential plus m to the power 5 this is your, यहाँ पे क्या है? m to the power 1 है, यहाँ पे m नहीं है, so we have not used that. Okay, देखिए you can just by this method you can understand this concept. 1 plus m to the power 1 1 exponential plus m to the power 2 2 exponential, m to the power 3 ये 3 आएगा, ठीक है? 3 3 exponential, m to the power 4 4 exponential. Likewise it will be coming till जितना वैल्यू आपको निकालना है, m to the power r divided by r exponential. ठीक है? अभी सपोज फॉर एग्जांपल 4 एक्सीडेंट्स हुआ तो 4 तक आएगा, 3 एक्सीडेंट हुआ 3 तक आएगा, ठीक है? 2 एक्सीडेंट्स हुआ 2 तक आएगा. तो यहाँ पे what you are going to see is this is the format how we are doing it. Okay. Okay. Like this, how we are going to write this in the form of a table. Table के form में हम कैसे लिखेंगे? That we are going to see how
इसको हम टेबल के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? इन केस जैसे मैंने वहां पे आप लोगों को बताया था, नंबर ऑफ सक्सेस ठीक है, लेट अस सी दैट हाउ वी कैन गोइंग टू प्रेजेंट दिस इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल। जैसे मैंने आपको बाइनोमियल बताया था, लाइकवाइज फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ सक्सेस हमने वहां लिखा था नंबर ऑफ हेड्स एट अ थ्रो, राइट? वहां पे ऐसा लिखा था, एंड प्रोबेबिलिटी px which is equal to r, ठीक है। अभी देखिए हाउ यू आर गोइंग टू राइट फॉर 0, फॉर 1, फॉर 2, फॉर 3, फॉर 4 टिल फॉर r you are going to write, okay? अभी फॉर 0 मैं यहाँ पे again I am writing because you have to see in one page. 1 plus m plus m square divided by 2 exponential m cube divided by 3 exponential m to the power divided by 4 exponential plus m to the power r divided by r exponential, ठीक है। अभी for this is for 0, this is for 0, this is for 1, this is for 2, this is for 3, this is for 4, and this is for r number of success, right? जैसे we have seen in case of binomial। अभी यहाँ पे probability for 0 अगर आपको निकालना है, probability for 0 success, no accident। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक्सीडेंट लेते हैं, मान लीजिए we are taking accident ठीक है, अगर हम एक्सीडेंट लेते हैं तो नंबर ऑफ सक्सेस क्या है आपका? देयर इज नील एक्सीडेंट। 0 मतलब क्या? नील एक्सीडेंट यू आर टेकिंग। तो नील एक्सीडेंट के लिए दिस वन यू हैव टू सॉल्व। दिस इज कॉमन, नो? e टू द पावर माइनस m into 1, इट विल बी e टू द पावर माइनस m, ठीक है। एंड फॉर दिस सेकेंड वन, दैट इज वन सक्सेस। वन सक्सेस के लिए फॉर्मूला क्या है? e टू द पावर माइनस m। तो मैंने आपको फॉर्मूला क्या दिया था? p r, मेन फॉर्मूला। आई एम कमिंग बैक टू मेन फॉर्मूला, ओके। ये फॉर्मूला मैंने आपको दिया था, देखिए e टू द पावर माइनस m। अभी इसमें आप डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, लिखने का भी जरूरत नहीं है। इफ यू आर नॉट राइटिंग दिस, नो, e टू द पावर माइनस m आपने डाला, देखिए e टू द पावर माइनस m, और m टू द पावर r क्या है? सक्सेस 0 है, और यहाँ पे 0 एक्सपोनेंशियल है। जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई एम राइटिंग e टू द पावर माइनस m, आई एम जस्ट पुटिंग दिस फॉर दिस, ओके। फर्स्ट वाला के लिए मैं पुट कर रही हूँ e टू द पावर माइनस m टू द पावर r डिवाइड बाय r एक्सपोनेंशियल। e टू द पावर माइनस m टू द पावर 0 एंड r कितना है? 0 एक्सपोनेंशियल। तो ये दोनों नहीं आएगा, e टू द पावर माइनस m आएगा, तो ये यहाँ पे हमने लिख दिया, ठीक है। लाइकवाइज 1 के लिए m टू द पावर e टू द पावर माइनस m टू द पावर 1 डिवाइड बाय 1 एक्सपोनेंशियल। अभी 1 एक्सपोनेंशियल, what is the meaning of exponential? if I am writing 2 exponential मतलब बैकवर्ड आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। 3 एक्सपोनेंशियल मतलब 3 into 2 into 1। 5 एक्सपोनेंशियल मतलब 5 into 4 into 3 into 2 into 1, इस तरह से जाएगा, ठीक है। दैट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपोनेंशियल। यू हैव टू मल्टीप्लाई बैकवर्ड्स, बैकवर्ड्स आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो अभी बाकी आप लोग आराम से कर सकते हो, राइट? इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, देखिए यहाँ पे e टू द पावर माइनस m। अभी सब में e लिखने का मतलब नहीं, इसलिए आई हैव गिवन यू दिस e एज कॉमन, बिकॉज दिस वैल्यू इज कमिंग इन ऑल द टर्म्स, सारे टर्म्स में ये वैल्यू आता है, ठीक है। अभी दिस इज फॉर 2, जहां पे ये 2 है, दिस इज फॉर 2, तो क्या लिखोगे आप? e टू द पावर माइनस m टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 एक्सपोनेंशियल। लाइकवाइज फॉर 3 और r के लिए वैसे लिख दोगे, ठीक है। आप ये समझ गए लिखना? तो ये आपका जो कॉन्सेप्ट है, इट इज वेरी क्लियर। देखिए दिस इज फॉर 0, दिस इज फॉर 1 एंड दिस इज फॉर 2, ठीक है। उसी तरह आपको 3 और 4 का आप कर लोगे, यू कैन डू दैट। आई एम जस्ट टेलिंग यू अबाउट r। अभी r में जो फॉर्मूला है वो लिख लेंगे, तो दैट विल बी आपका टेबल कंप्लीट हो जाएगा। अगर थ्योरी में आता है तो आप लिख सकते हो। देखिए फॉर्मूला बहुत सिंपल है, एज सिंपल एज वी हैव सीन इन केस ऑफ बाइनोमियल, ठीक है। ओके, इज दिस क्लियर नाउ? आप लोग ना, मैं जो बता रही हूँ आप अपना रफ में लिखते रहिए, ठीक है। यू जस्ट मेक अ नोट ऑफ इट। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. मैं Yes, नोट्स आपको ma'am. इसका भेज दूंगी, ओके। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी इज कांस्टेंट्स। हमने बाइनोमियल का कांस्टेंट्स देखा था ना, Yes, ma'am. लाइकवाइज Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. कांस्टेंट्स ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन।
कॉन्स्टेंट्स ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का हम कॉन्स्टेंट्स देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो P है, P का मतलब क्या है? सक्सेस, राइट। P इज वेरी, Yes. यहाँ पे P का वैल्यू, P कैसा रहता है? बहुत, सक्सेस रेट बहुत कम रहता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है। P सक्सेस जो है बहुत स्मॉल रहता है, इसीलिए Q का वैल्यू ऑलमोस्ट किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। P आपको बहुत कम मिलेगा, माइट बी 0.01, माइट बी वेरी लेस परसेंटेज, ठीक है। इसीलिए जो Q का वैल्यू इट इज नियर टू 1। एज आई टोल्ड यू, the when we add together we will get 1, but the success rate in case of poison is very small। समझ में आ रहा है? सक्सेस रेट अभी देखिए, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया, एक्सीडेंट केस आ गया, प्रिंटिंग मिस्टेक आ गया, नंबर ऑफ टेलीफोन कॉल्स रिसीव्ड, ठीक है, नंबर ऑफ टेलीफोन कॉल रिसीव्ड, ये सब क्या है? दिस आर वेरी रेयर। दिस आर वेरी रेयर, बट नाउ दिस टेलीफोन कॉल जो है इट इज टेकिंग कंटिन्यूअस वेरिएबल, बट स्टडी पर्पस के लिए वी आर टेकिंग लाइक टेलीफोन कॉल्स आर वेरी रेयर, ठीक है। ये सब टेलीफोन कॉल्स एक्सीडेंट इस तरह आता है, तो यू कैन अज्यूम दैट दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। Yes, ma'am. ओके, तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट हम देखेंगे मीन, द मीन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, द मीन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, द मीन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज रिटन एज दिस m। मैंने आपको बताया ना वहां पे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का भी एनपी लेंगे, या तो एवरेज नंबर ऑफ अकरेंस अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट यू कैन टेक। पॉइंट नंबर 2 इज स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है, द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? रूट ओवर m। लेकिन हमने वहां में क्या देखा था? Root over NPQ. हाँ, यहाँ पे क्यों नहीं? you should not get confused, okay। in case of Poisson distribution mean is np, the same formula which we have seen in case of binomial, but standard deviation का formula is not same, it is root over m, it is root over m। third one is first moment, first moment, ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे? mu1, first moment it is written as 0, the मतलब इसका आंसर डिफाइंड है, ऑलरेडी डिफाइंड है कि it will be 0। fourth one is second moment, right, second moment is m, third moment is also m। so you can see that the value of second moment and third moment is same, ये दोनों same है, you can see, okay। मतलब it is the value of mean only। next one is fourth moment, the value of fourth moment is m plus 3m square, m plus 3m square, is this clear? m plus Yes. 3m square, Yes, ma'am. Yes, ma'am. m plus 3m square। seventh one is skewness, जैसे we have seen in case of binomial, no, उसी तरह यहाँ पे भी है, beta 1 is equal to third moment, this is third moment, और third moment का square divided by second moment का cube, ठीक है। सिंपली अगर हम बोलेंगे तो ये नहीं लिखने से भी चलेगा, डायरेक्ट आप काट चट के आंसर यू विल बी 1 by m, ठीक है, इतना याद करने से बस है। ठीक है, तो देयरफॉर बीटा 1 इज इक्वल टू व्हाट? 1 by m, ठीक है, ये मिल गया आपको, ये बीटा 1 है, बीटा 1 इज 1 by m। नेक्स्ट वन इज कर्टसिस, बीटा 2 इज इक्वल टू, मैं ये शॉर्टकट्स नहीं लिखाती, ठीक है, यहाँ पे जस्ट आई एम कमिंग टू द मेन सॉल्यूशन। कर्टसिस इज इक्वल टू 3 plus 1 by m। अभी सबसे बड़ा एडवांटेज आपको क्या दिखाई दिया बताइए सारा कॉन्स्टेंट्स में? व्हाट एडवांटेज यू फाउंड? Did you find any advantage in all the constants? You can say that सारे जितना भी फॉर्मूला हमने देखा, ऑल फॉर्मूला में सिर्फ एक ही वैल्यू यूज हुआ है मैक्सिमम,
दैट इज द वैल्यू ऑफ m. इट मींस व्हाट, अगर आपके पास m का वैल्यू है तो सारा कांस्टेंट आप आराम से निकाल सकते हैं. पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में यू नीड टू हैव द वैल्यू ऑफ n, यू नीड टू हैव द वैल्यू ऑफ p, यू नीड टू हैव द वैल्यू ऑफ q. ये सबका वैल्यू पता चलना है. अभी np का वैल्यू नहीं दिया है, फॉर एग्जांपल n और p का अलग से नहीं दिया है, लेकिन मीन दिया है. इफ मीन इज गिवन यू कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ऑल द कांस्टेंट. दैट इज अ गुड पार्ट ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन. समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. वेरी गुड. Yes, ma'am. अभी ये स्क्रीन दिखाई दे रहा है आपको? Yes, Yes, ma'am. ma'am. हाँ, तो यही मैंने अभी Yes, पढ़ाया ma'am. आप लोगों को, ठीक है? डिस्क्रीट पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, दिस ऑल आई हैव टॉट यू नाउ. कांस्टेंट्स ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आपने देख लिया. यहाँ पे फॉन्ट चेंज होने की वजह से कुछ गड़बड़ हुआ है, दैट आई विल चेक आउट. ये देखिए, आई विल जस्ट कॉपी दिस. ओके, यहाँ पे आई एम कॉपिंग दैट क्वेश्चन, ठीक है? दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन पॉइजन में. कितना क्वेश्चन हुआ आपका टोटल? 22. लेट इट बी 23, ठीक है? No, ma'am. 22 है ये वाला question. हाँ, Yes, ma'am. It's 22. It's 22. ओके. 21 हो गया, ma'am. तो ये 22 है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, तो Yes, इसमें ma'am. देखिए मीन दिया हुआ है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का. मीन कितना दिया है क्वेश्चन में क्लियरली स्पेसिफाई है. देखो, मीन ऑफ द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इस मतलब m जो है वो आपका 2.25 है, ठीक है? m इज 2.25. तो इसके हिसाब से सारा क्या निकालना है आपको? यू हैव टू फाइंड आउट द कांस्टेंट ऑफ ऑल द डिस्ट्रीब्यूशन. तो कांस्टेंट ऑफ द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको क्या क्या बताया? आई हैव टोल्ड यू मीन, आई हैव टोल्ड यू स्टैंडर्ड डिविएशन, आई टोल्ड यू फर्स्ट मोमेंट, सेकंड मोमेंट, थर्ड मोमेंट एंड fourth moment, right? And I've told you about beta 1 skewness and beta 2 kurtosis. Is that clear to you? Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो ये आप लोग Yes, निकाल ma'am. Yes, लोगे. ma'am. Yes, ma'am. ये आप निकाल लोगे. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो इसमें मीन देखिए, मीन का वैल्यू 2.25 रहेगा. स्टैंडर्ड डिविएशन आप क्या करोगे? 2.25 का रूट निकालोगे. इज दैट नो? स्टैंडर्ड डिविएशन विल बी रूट ओवर 2.25, ठीक है? और मीन 1 और मीन 2, सॉरी मोमेंट 1 और मोमेंट 2 का आंसर दोनों क्या है? सेम है, मीन आएगा, राइट? 2.2, इसका आंसर 2.25, इसका भी 2.25. उसी तरह थर्ड मोमेंट का आपको कैलकुलेट करना है. थर्ड मोमेंट का, सॉरी, फर्स्ट मोमेंट, नहीं, फर्स्ट मोमेंट का 0 है ना? क्या बताया था मैंने? चेक. फर्स्ट मोमेंट इज 0. मैम फर्स्ट मोमेंट 0 है, सेकेंड और थर्ड यूनिट सिमिलर आएगा, सेम हाँ, ये आएगा. दोनों सेम आएगा, राइट? तो फर्स्ट मोमेंट इज 0, ये दोनों क्या है? सेम है. फोर्थ मोमेंट आपको देखो, देखा जाए तो कैलकुलेट आपको यहां से करना है, फोर्थ मोमेंट से, राइट? तो फोर्थ मोमेंट इज Yes. फोर्थ मोमेंट का फॉर्मूला क्या है? m प्लस 3 m स्क्वायर. M तो यहाँ पे power भी 2. यू हैव टू यूज 2.5 प्लस 3 इंटू 2.25 का स्क्वायर. तो इसको सॉल्व करके यू विल गेट सम आंसर. तो यू कैन चेक इट आउट, ठीक है? तो बीटा 1 एंड बीटा 2 आल्सो यू कैन डू. ठीक है? Ma'am, हाँ, the movement 4 is approx 17.4 something. हाँ, 17.437. Yes. वर्क कर लीजिए, ठीक है? Yes, ma'am. मैंने 3 डिजिट रखा है, यू कैन कीप अकॉर्डिंगली. मिनिमम 2 रखना, Okay. ठीक है? उससे कम नहीं रखना. तो ये क्लियर है आपको? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yeah. 1 minute, हाँ.
Okay, next question we are going to see. ठीक है, question number 23. हाँ this one 23. हाँ 23 question number वही है. ठीक है. अभी देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है. सपोज ऑन एन एवरेज वन हाउस इन थाउजेंड in a certain district has a fire during a year. If there are 2000 houses in that district, what is the probability that exactly 5 houses will have fire during the year? अभी समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन? यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अभी इसमें क्या दिया हुआ है? सपोज ऑन एन एवरेज वन हाउस इन थाउजेंड, मतलब क्या है, 1000 में एक घर जलता है इन अ सर्टेन डिस्ट्रिक्ट. इफ वन हाउस इज गेटिंग फायर्ड ड्यूरिंग अ ईयर, अगर 2000 हाउसेस है, फॉर एग्जांपल इफ देयर आर 2000 हाउसेस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 5 हाउसेस विल हैव फायर ड्यूरिंग द ईयर? ठीक है. तो अभी आप देख सकते हो ये क्वेश्चन क्या है, फायर है, ये एक्सीडेंट है, राइट? सो व्हेन वन हाउस इन थाउजेंड, मतलब चांसेस ऑफ गेटिंग फायर और चांसेस ऑफ सच एन इवेंट इज वेरी रेयर, राइट? तो सबसे पहले यू हैव टू फाइंड आउट विच डिस्ट्रीब्यूशन यू हैव टू अप्लाई और विच फॉर्मूला यू हैव टू अप्लाई हियर. कौन सा फॉर्मूला आपको यहाँ अप्लाई करना है? अभी एज आई टोल्ड यू हियर, द अभी यहाँ पे सोल्यूशन में क्या होगा? यू कैन सी दैट वन हाउस इन थाउजेंड मतलब 1000 में वन हाउस इज गेटिंग फायर, 1000 में वन घर इज गेटिंग फायर. तो व्हाट यू आर गोइंग टू राइट? दिस इज द प्रोबेबिलिटी फॉर सक्सेस. यस और नो? Yes, ma'am. Yes, one house in 1000 in a certain district has a fire. तो आपको यहाँ P मिल गया, you got the P, right? और अभी सेकंड ये हो गया एक probability. This is your probability. Second क्या पूछा? In a certain district has a fire during a year. This was the first statement. Okay, we have gone through. Second statement क्या दिया? If there are 2000 houses, अगर कितना है? 2000 houses है. ठीक है. अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2000 हाउसेज है एक डिस्ट्रिक्ट में, अगर 2000 हाउसेज है तो 2000 हाउसेज क्या हुआ? अभी ये आपको इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, एन कितना है? एन 2000 दिया हुआ है. अगर 2000 हाउसेज है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि 5 हाउस जलेगा? व्हाट इज द पॉसिबिलिटी दैट 5 हाउस जलेगा? व्हाट इज दिस 5? दिस इज आर नंबर ऑफ सक्सेस. नंबर ऑफ सक्सेस कितना है? 5. सो नाउ यू आर क्लियर विद द क्वेश्चन. अभी क्वेश्चन को मैंने न्यूमेरिकली यहाँ पे एक्सप्रेस कर दिया. इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, I have explained this numerically. Okay. Okay. Now I am going to find out this answer. The answer for this. ठीक है? क्या क्वेश्चन है? The probability that exactly 5 houses will get fire. लिखूंगी. Therefore, the probability that exactly 5, जैसा क्वेश्चन दिया ऐसे ही आप उतार सकते हो. Exactly 5 houses getting fire. Probability that exactly 5 houses getting fire. फॉर्मूला क्या था हमारा? हमने क्या फॉर्मूला लिखा था? पी आर इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एम टू द पावर आर डिवाइडेड बाय आर एक्सपोनेंशियल, राइट? Yes, ma'am. ये हमारा Yes, फॉर्मूला ma'am. था. ठीक है. तो अभी आर कितना था? आपने नोट में लिखा ना, प्लीज वो चेक कर लीजिए. आर कितना था? हाउ मेनी हाउसेस गेटिंग फायर? 5. 5. यहाँ पे e टू द पावर माइनस एम है. m का वैल्यू वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ m, राइट? वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ m. मैं ऊपर ही कर लेती हूँ. आई विल जस्ट फाइंड आउट हियर. यहीं पे मैं m निकाल दूं. m इज इक्वल टू व्हाट? np. n कितना है? n इज 2000. नो, m इज इक्वल टू n इज 2000 इनटू p कितना है? 1/1000.
ये हम लोग को पता है, अगर 1000 में एक घर जलता है तो 2000 में दो घर जलेगा. इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. तो ये Yes, हम लोग Yes, को, ma'am. हाँ, दिस वी हैव टू कैलकुलेट, ये हम लोग को कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो अभी मैं यहाँ क्या लिखूंगी? e टू द पावर, m है ना, ये m में मैं क्या लिखूंगी? e टू द पावर, -2 यस, -2 भी दिया, Minus देखिए two. मुझे सिर्फ m का -2. वैल्यू लिखना है. इज दैट क्लियर? e minus m is in the formula, right? I will put that minus as it is, formula जैसा वैसे ही लिखूंगी. The only I am going to write is the value of m in their places. ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ m कितना है? m is 2, यहाँ पे 2 लिखा मैंने. फिर ये कितना है? दिस इज m टू द पावर, फिर m लिखना है मुझे. यहाँ पे m का वैल्यू कितना है? इनटू m का वैल्यू कितना है? 2. इज दैट क्लियर? और Yes. r Yes, का ma'am. वैल्यू कितना Yes, है? ma'am. R5 5. 5. Yeah. Five. और नीचे में हम मैंने Five. लिखा, नीचे में क्या दिया हुआ है? r एक्सपोनेंशियल, तो कितना लिखूंगी? 5 exponential. 5 एक्सपोनेंशियल. इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये देखिए, e जो है, e क्या है? e एक कांस्टेंट है विच इज अप्रोक्सीमेटेड बाय द वैल्यू 2.7183. समझ में आ रहा है? e का वैल्यू क्या है? ये अप्रोक्सीमेटेड है बाय 2.7183. ये फिक्स्ड है. आपने मैथ्स में पढ़ा होगा e का वैल्यू, पाई का वैल्यू. इज दैट? Yes, ma'am. हाँ, the value of e is equal to 2.7183. ये वैल्यू है. दिस वी आर नाउ इन प्लेस ऑफ e आई विल बी राइटिंग दिस. ठीक है, मैं क्या लिखूंगी अभी e की जगह में? आई विल बी राइटिंग द वैल्यू ऑफ 1 मिनट, आई एम जस्ट री राइटिंग. आप यही फॉर्मूला में यहीं पे लिख सकते हैं. द वैल्यू ऑफ e आई एम राइटिंग हियर 2.7183 to the power -2 into 2 to the power 5 divided by 5 exponential. This is what I am getting now. This is what I am getting now. Okay. अभी देखिए, ये क्या है? e to the power -2 है, मतलब this value e to the power -2, e to the power -2. Okay. For this I have given you a chart. मैंने इसके लिए आपको एक चार्ट भेजा अभी, देखा आपने? Let me check this one, not this, sorry, this one. ये मैंने भेजा था आप लोगों को. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अभी देखिए, राउंड फिगर में है ये e टू द पावर -m है. ये क्या है? e टू द पावर -m है, राइट? e टू द पावर -m मतलब m का वैल्यू दिया हुआ है 1 2 3 टिल 10 तक वैल्यू दिया हुआ है. यू कैन सी e टू द पावर -1 बोलने से यू हैव टू सी दिस. -2 मींस यू हैव टू सी दिस. समझ में आ रहा है? अभी देखिए, आपका जो अरिथमेटिक मीन है, सॉरी एवरेज जो है, एवरेज राउंड फिगर में आया है 1 2 3. जैसा अभी इस फॉर्मूला में आपका ऐसा दिया हुआ है e टू द पावर -2, तो e टू द पावर -2 में ये देखोगे आप, तो वैल्यू आपका इतना आएगा. ठीक है, योर वैल्यू विल बी 0.135 समथिंग यू विल बी गेटिंग. अभी वहीं पे अगर आपका वैल्यू इस तरह से 0.01 0.01 0.11 ऐसा होने से यहाँ पे आपको आना है. 0.0 यहाँ पे दिया, देखिए 0.01 मीन्स यहाँ पे देखना है आपको, 2 मीन्स यहाँ देखना है. यू आर एबल टू अंडरस्टैंड हाउ टू सी? Yes, ma'am. हाँ, ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. अब ये देखिए, अभी मैंने वो आपको टेबल का बता दिया. ठीक है, e टू द पावर -2 का फॉर्म वैल्यू कितना यहाँ पे वहां पर दिया हुआ था. व्हाट वाज द वैल्यू बीइंग गिवन? 0.135335. 0.135335. दिस वाज द वैल्यू व्हिच इज गिवन इन द टेबल. ठीक है. अभी ये जो वैल्यू है ना, दिस वी कैन फाइंड मैनुअली आल्सो वी कैन फाइंड. आपके पास लॉग टेबल है? वन मिनट. हाँ,
ठीक है, देखिए ये लॉग टेबल है. विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल व्हाट वी कैन डू, दिस इज लॉग टेबल. लॉग टेबल में वैल्यूज देखिए कहां से कहां तक दिया हुआ है. लॉग टेबल में 10, दिस इज योर 10, वैल्यू नंबर 10. 10 से लेकर देखिए माउस, देखिए मूवमेंट ऑफ माउस कैन यू सी. Yes, ma'am. हाँ, पेन इसमें यूज नहीं हो रहा है. तो यहाँ पे जो 10 दिया हुआ है, यू कैन सी दिस इज 10. ठीक है, 10 से लेकर 99 तक वैल्यू आपका लॉग में दिया हुआ है. ठीक है, उसी तरह यू शुड हैव एंटी लॉग ऑल्सो. ठीक है, लॉग एंड एंटी लॉग यू हैव गॉट. ठीक है, ये पूरा आ गया. ठीक है, एब्सेंट यू कैन चेक. ओके, नाउ आई एम कमिंग बैक. सो अभी क्या है, एज आई टोल्ड यू दैट यू कैन यूज दिस टेबल. आप ये टेबल यूज कर सकते हैं, दिस वन पॉइजन टेबल आप यूज कर सकते हो. एंड मैनुअल कैलकुलेशन के लिए यू नीड व्हाट टेबल, लॉग टेबल. यू नीड बोथ लॉगरिथम्स एज वेल एज एंटी लॉगरिथम्स, दोनों आपको चाहिए. ठीक है. So let us go back to the sum now. This one. हाँ, तो इन ऑर्डर टू सॉल्व e टू द पावर माइनस m, e टू द पावर माइनस m को सॉल्व करने के लिए मिनट, e टू द पावर माइनस m को सॉल्व करने के लिए यू व्हाट यू हैव टू डू इज दिस वन यू हैव टू सॉल्व. ओके, so for solving this e to the power minus m, e to the power minus m solve करने के लिए what you have to use, you have to use log table as well as anti log table. ठीक है ना, लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल आपको यूज करना है. तो आप ये कैसे करोगे, हाउ यू आर गोइंग टू डू दिस इज इसको क्या करना है, आई एम जस्ट कीपिंग द फॉर्मूला एज इट इज. ठीक है, मैं फॉर्मूला वैसे ही रखती हूँ, सिर्फ इसके स्थान पर व्हाट आई विल बी यूजिंग, यू सी आई विल बी रेसिप्रोकेटिंग. दिस इज व्हाट रेसिप्रोकल. इफ यू आर गेटिंग 2/1 you should reciprocate it by 1/2. ठीक है, just in order to solve this reciprocate, within bracket I'll be writing anti-log. Anti-log, this value will I'll be writing first, anti-log 2. ठीक है, into log of 2.7183. ठीक है, देखो मैंने कैसे लिखा, हाउ आई हैव रिटन, यू कैन सी दिस. ठीक है, what I'll be doing, I have multiplied 2 into, then I have taken the log of this 2.7183 का log. I have to find out the log of this, इसका log निकालना है, फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर जो आंसर आएगा उसका हम लोगों को एंटी लॉग निकालना है. दिस इज व्हाट वी हैव टू डू, राइट. ओके,
तो ये मैंने लिख दिया, ये इसके प्लेस में मैंने ये पूरा लिख दिया, ठीक है। अब ये वैल्यूज मैं वैसे ही लिखूंगी, इंटू 2 to the power 5, 2 into 2 into 2 into 5 times it will be, the figure will be 32 whole divided by 5 exponential लिखा है, how I am going to write backward count, 5 into 4. 5 into 4 into 3 into 2 into 1, this is what I am writing, okay। अब आपको क्या करना है, what you have to do now is, what you have to do now is, you know how to see the log देखना जानते हो आप? हम्म, हाँ, जो यहाँ पे आंसर आएगा फिर उसको हम रेसिप्रोकेट कर देंगे, ठीक है। एंटी लॉग 2 इंटू लॉग, अभी अगेन आई हैव टू राइट हियर 2, 2 तो लिखना पड़ेगा, ठीक है। अभी ये 2.7183 है, 2.7183। अभी सबसे पहले आपको देखना है होल डिजिट कितना है, जस्ट कम बैक, आई जस्ट हाउ टू फाइंड लॉग एंड एंटी लॉग, ठीक है। ठीक है, हाउ टू फाइंड लॉग एंड एंटी लॉग। अगर इन केस डिजिट देखिए कितना है, अगर एक होल डिजिट है, कितना डिजिट है, एक अगर होल डिजिट है, अभी 2 इज ओनली वन नंबर, वन डिजिट है ना। अगर मैंने यहाँ पे 21 लिखा तो कितना डिजिट है, 2 डिजिट है, ठीक है। 22 लिखा तो कितना डिजिट है, 3 डिजिट है। 24 लिखा तो कितना डिजिट है, 4 डिजिट है। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. आई एम जस्ट टेलिंग यू हाउ टू फाइंड आउट द लॉग। अब आप क्या करोगे, यू व्हाट यू हैव टू डू इज, अभी यहाँ पे होल नंबर है, होल नंबर 1 डिजिट है, 1 डिजिट है, तो यू विल बी पुटिंग 0 पॉइंट, यू विल बी पुटिंग 0 पॉइंट, मतलब जितना डिजिट है उसे एक कम पॉइंट डालोगे, ठीक है। तो यहाँ पे दो, एक डिजिट है तो आपने 0 पॉइंट डाला, यहाँ पे 2 डिजिट है तो कितना पॉइंट डालोगे, 1 point. 1 पॉइंट। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 2 1 point. 3, यहाँ पे मैंने 3 डिजिट डाला, कितना पॉइंट डालोगे, 2. 2 point. 2 पॉइंट। यहाँ पे मैंने 4 डिजिट डाला, कितना डालोगे, 3. 3 point. 3 पॉइंट। अभी मैंने यहाँ पे 4 3 डिजिट point. डाला, 1 2 3, हाँ इधर में मैंने 4 डिजिट डाला, तो कितना डालोगे, 3 point. जितना डिजिट है उससे एक कम यू आर गोइंग टू पुट पॉइंट। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes. हाँ देखिए यहाँ पे मैंने फॉर एग्जाम्पल इसको मैं काटती हूँ, 2 Yes, ma'am. 1 4 3, ठीक है, 2 1 4 3। अभी देखिए यहाँ पे मैं 20 लिखती हूँ जस्ट समझाने के लिए। 2 है, 2 का आपने 0, एक डिजिट का आपने 0 लिया, 2 डिजिट का आपने 1 लिया, 3 डिजिट का मतलब जितना डिजिट है उससे एक कम पॉइंट यू आर गोइंग टू पुट। डिजिट मींस होल पॉइंट में रहना है। अगर यहाँ पे 2.1 है तो होल नंबर एक ही है, यहाँ पे समझ में आ रहा है, तो आप 0 ही लोगे। just you have to check the whole number, just you have to check the whole number, not the values which are in fractions, उसको नहीं देखना है, पॉइंट के पहले कितना डिजिट है दैट यू हैव टू चेक। तो ये आपको करना है, ठीक है। अभी देखिए मैं आपको हाँ अभी यहाँ पे I'll just use that anti-log, ठीक है। अब मैं इसे थोड़ा बड़ा करती हूँ, I'll just enlarge it। अभी देखिए कितना आया आपका, डिजिट 2 आया। ठीक है, where is that? हाँ आपका डिजिट कितना है यहाँ पे, ए फॉर एग्जाम्पल 2.1 का आप वैल्यू कितना, 2 वैल्यू का आप कितना लोगे, 1 को निकाल दीजिए, ठीक है। मैं 1 को अभी निकाल रही हूँ, 2 का वैल्यू कितना आएगा, चेक द टेबल, वेयर इज द टेबल, हाँ दिस इज द टेबल, ठीक है। अभी चेक द टेबल, टेबल में वैल्यू कितना दिया था मैंने, 2 दिया था, ठीक है। वैल्यू मैंने 2 दिया था, 2 मीन्स यू कैन सी हियर, 1 मिनट, not able to use the pen there।
ठीक है, विल सी इन हियर ओनली। अभी यहाँ पे देखिए आप, हाँ, अभी एज आई टोल्ड यू 2, ठीक है। अभी इन केस ऑफ दिस यू कैन सी लॉग टेबल में कैसा दिया रहेगा वैल्यू। इन केस ऑफ लॉग टेबल यू कैन सी द वैल्यूज आर गिवन लाइक दिस, ठीक है। कंफर्टेबल 1 minute, hold on। So you can see that how the values are being given। यहाँ पे यहाँ पे वैल्यूज दिया है 0 1 2 टिल 9 दिया हुआ है, ठीक है। और ये जो है मेन डिफरेंस है जिसमें 1 से लेके 9 तक दिया हुआ है। यहाँ पे आपका टोटल वैल्यूज दिया 10 से लेकर 10 11 लाइकवाइज द वैल्यूज आर गिवन, यू कैन सी, यू कैन चेक हियर। ठीक है, यहाँ पे 0 दिया हुआ है, यू कैन सी द माउस। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, आप अभी माउस देखिए, ठीक है। यहाँ पे 0 1 2 3 4 टिल 9 दिया हुआ है वैल्यू, मेन डिफरेंस में 1 से 9 दिया हुआ है। अभी वैल्यू यहाँ पे देखिए 10 से शुरू है, 10 11 12 13 14 लाइकवाइज 10 से यू कैन सी टिल 99 द वैल्यू विल बी गिवन। यहाँ पे 54 है फर्स्ट पेज में, सेकंड पेज में 99 तक वैल्यू है, ठीक है। उसी तरह एंटी लॉग का आप देखिए सेम है लेकिन पॉइंट में दिया रहेगा। एंटी लॉग मतलब क्या है, एक्चुअल वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए वी आर यूजिंग एंटी लॉग, राइट। अभी तो इसमें 0.00 से लेकर 0.99 तक दिया है। वहां पे कितना 10 से 99, यहाँ पे 0.00 से 0.99 तक वैल्यू इज गिवन, ओके। सो नाउ हाउ टू फाइंड आउट दैट वी आर गोइंग टू सी। अभी देखिए एज आई टोल्ड यू द वैल्यू इज 2, द वैल्यू इज 2 है ना। इसका जो वैल्यू है ये कितना है आपका, वैल्यू जो है आपका दिस इज 12, 2। ये देखिए ये 2 वैल्यू है। अभी 2 वैल्यू का हम लोग क्या देखेंगे, 2 वैल्यू में यू कैन सी यहाँ पे 2 नहीं दिया हुआ है, 10 से शुरू हुआ है। द वैल्यू स्टार्टेड फ्रॉम 10, द वैल्यू स्टार्टेड फ्रॉम 10। इफ इट इज लाइक दैट यू कैन सी अगर 10 से कम वैल्यू है लाइक 2 3 4 5 6 ऐसा वैल्यू दिया है, तो व्हाट यू हैव टू डू इज जैसे अभी 2 दिया हुआ है, जैसे 2 का वैल्यू आप फाइंड आउट कर रहे हो, ठीक है। अभी 2 का वैल्यू इफ इट इज नॉट गिवन, 2 का वैल्यू नहीं दिया है क्योंकि वैल्यू किससे दिया हुआ है, 10 से शुरू हुआ है, उसका पहले वाला वैल्यू नहीं है। तो हियर व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज फॉर 2 you have to put a 0 next to 2, 2 का बाद 0 डालना है, you have to put 0, then you have to find out the value। उसके बाद आपको क्या करना है, वैल्यू फाइंड आउट करना है। इज दैट क्लियर? अभी जैसे फॉर Yes, ma'am. Yes, ma'am. दिया है तो 3 के बाद वैल्यू नहीं दिया, एक डिजिट है। अभी देखिए 2 का 0 पॉइंट है, 2 का 0 पॉइंट है। अभी आप क्या करोगे, इसमें सेकंड डिजिट नहीं दिया है तो यू आर पुटिंग 0 एंड यू आर फाइंडिंग आउट द वैल्यू। हाउ यू आर फाइंडिंग द वैल्यू, यू कैन सी, मतलब अभी 20 में देखना है, 20 में 0 यू आर गोइंग टू सी। ठीक है, अभी देखिए 10 है ना, यहाँ पे 20 देखेंगे, 20 में नेक्स्ट कोई वैल्यू नहीं दिया तो 20 में 0 इज 3010। ठीक है, कितना दिया, 3010। अभी देखिए 20 में 0 is 3010। हाउ यू आर गोइंग टू राइट, यू सी how you are going to write here, sorry, how you are going to write here is the value will be 3010। 3010 देखिए यहाँ पे 20 3010। अभी वहीं पे यू कैन सी दैट इफ आई एम राइटिंग फॉर दिस 20 का मैं लिख रही हूँ, 20 का मैं लिख रही हूँ, यहाँ पे लिखूंगी 3010 फॉर व्हाट, फॉर नंबर 2 के लिए। अभी 20 के लिए भी वैल्यू सेम ही रहेगा लेकिन यहाँ पे क्या रहेगा, 1 पॉइंट रहेगा, 3010। अगर और एक 0 है तो यहाँ पे 2 पॉइंट रहेगा, और एक 0 है तो यहाँ पे क्या लाएगा, 3 पॉइंट। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. आई एम
गोइंग बैक टू माय क्वेश्चन फिगर। ओके, अभी log 2.7183 है। log अभी कितना दिया हुआ है? 2.7183। अभी 2.7183 मींस यू कैन सी वैल्यू कितना है? 2.7183। तो हम लोगों को कितना चाहिए? वी नीड ओनली 4 डिजिट्स। कितना डिजिट्स चाहिए? 4 डिजिट्स चाहिए। तो मैंने यहाँ पे आई टोल्ड यू लाइक 2.7183 है, तो आपने इसका वैल्यू एक डिजिट होल नंबर है तो आपने 0 पॉइंट लिख लिया, ठीक है। अब फॉरगेट अबाउट दिस पॉइंट, पॉइंट के बारे में भूल जाइए। अभी आप क्या लिखोगे? 2718। लास्ट डिजिट क्या है? 3 है, इसलिए हम उसको छोड़ देंगे। अगर वो 6 7 होता तो हम ये 8 को 9 कर देते। इज दैट क्लियर? Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो कितना डिजिट लेना है? एट द टाइम व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग लॉग और एंटी लॉग, यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट ओनली हाउ मेनी डिजिट्स? 4 डिजिट्स यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट, ठीक है। अभी आपने यहाँ पे 0 पॉइंट कर दिया। अब आप देखिए, आप यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट के बारे में यू जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। अभी आपने 4 डिजिट ले लिया, 22718। अभी देखिए, वहां पे हमने 2 डिजिट कहाँ देखा? मीन डिफरेंस में देखा। यहाँ पे आपको 2 डिजिट देखना है, यहाँ पे 2 डिजिट देखना है। 2 डिजिट मतलब यहाँ पे क्या, कौन सा डिजिट आएगा? 27। यहाँ पे देखोगे आप 27। 27 आपने यहाँ देख लिया। यहाँ पे कितना दिया है? 0 1 से लेके कितना 9 तक दिया हुआ है, राइट। तो यहाँ पे आप 27 का क्या देखोगे? 1 देखोगे। ये देखिए, ये देखा, ये फिगर देखेंगे। उसके बाद ये जो है 8 नंबर आप किस में देखोगे? मीन डिफरेंस में देखोगे, जिसमें कितना दिया हुआ है? 1 2 3 टिल 9 तक दिया हुआ है। ये समझ में आया कॉन्सेप्ट? Yes, ma'am. ये देखिए, मैंने यहाँ ड्रॉ किया, वहां पे मैं दिखाऊंगी। मैं अभी 27 का 1 का वैल्यू कितना है? चेकआउट। ये आपका 27 है। ये देखिए 27 का ये 0, फर्स्ट वाला 0 है, सेकंड वाला 1 है, तो 4330। आई एम जस्ट राइटिंग दैट 4330। ओके। कहाँ पे हूँ? यहाँ पे। यहाँ पे वैल्यू कितना है 1 पे? 4330। और मीन डिफरेंस देखिए। मीन डिफरेंस का कितना देखना है? 8। मीन डिफरेंस का 8 आपको देखना है। जस्ट चेकआउट। 13। 27 का 8 is 13. Very good. 13 है, put 13 there. I'm just coming back. Okay. ये आपका 13 है। ठीक है, इतना वैल्यू आपको देखना है। देखिए 2718, this 2 digit you are seeing where? This 2 digit you are seeing in रो में आप देख रहे हो। 1 आप फर्स्ट कॉलम में देख रहे हो, ये आपका रोज है, ठीक है। ये आपका कॉलम है, ये 1 फर्स्ट में देख रहे हो। और 8 जो है, यू आर सेइंग दिस 8 वैल्यू इन मीन डिफरेंस। आप क्या करोगे? ये जो मीन डिफरेंस का वैल्यू है ना, इसको, ये दोनों को आपको ऐड करना है। मतलब 4330 प्लस 13। समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. हाँ, Yes, ma'am. 4330 प्लस 13 मीन्स कितना आएगा? 4343. 4343. 4340, ठीक है। अब देखिए, 434. ओके, Ma'am, वेरी गुड। ये 4343, जस्ट ma'am. मैंने आपका कैलकुलेशन रखा है। 4343 मैम। हाँ, ये मैं डिलीट नहीं करती, ये मैंने ब्रैकेट में डाल दिया, जस्ट वर्किंग नोट है, ठीक है। ये है आपका मेन फॉर्मूला जो मैंने दिया आपको। अभी देखिए यहाँ पे 1 मिनट, थोड़ा छोटा करिए, दिखाई दे रहा है? ठीक है, आपका 4340 आया, राइट। Oh, ma'am. 4343. 4343, सॉरी, हाँ 4343 है। आई एम जस्ट राइटिंग दैट अगेन। क्या था बताइए और एक बार आप? एंटी लॉग 2 इंटू log 2.7183 into 2 to the power 5 is 32, no? Divided by Yes. 5 into 4 into 3 into 2 into 1 कितना आया? 120. 120. 20. 120. Okay, now I am enlarging it. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एंटीलॉग 2 इंटू लॉग ये आ गया। तो अभी आपको राइट डाउन, ये पूरा यहाँ तक आएगा, ठीक है ना। रेसिप्रोकेट एंटीलॉग 2 इंटू विल बी एज इट इज, ठीक है। अभी इसको हमने सॉल्व किया, दिस प्रॉब्लम को हमने क्या किया? सॉल्व किया। 2
2.7183 को हमने सॉल्व किया। 2 पॉइंट के लिए हमने कितना डाला, एक डिजिट के लिए हमने 0 पॉइंट डाला, और जो वैल्यू आपने कैलकुलेट किया वो कितना आया था, 43 43. 43. 43. मैंने लिख दिया, देखिए 4343 आई हैव रिटन मल्टीप्लाइड बाय 32 डिवाइडेड बाय 120। ठीक है, राइट डाउन रेसिप्रोकेट एंटीलॉग। अभी आपको 2 और इसको, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 2 एंड दिस को 2 इंटू 0.4343 को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने से कितना मिलेगा, 0.8686. 0.8686. 0.8686, ठीक है, 86. वेरी गुड, इनटू 32। अभी ये रेसिप्रोकेट को सॉल्व करने के बाद, ये एंटीलॉग निकालने के बाद, उसको रेसिप्रोकेट करने के बाद यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस 32। तो अगेन आई एम राइटिंग डिवाइडेड बाय 120, डिवाइडेड बाय 120 इज इक्वल टू, ठीक है। अभी राइट डाउन रेसिप्रोकेट। अभी कम टू एंटीलॉग, कितना है एंटीलॉग, 0.8686। अभी देखिए जीरो, इन केस ऑफ एंटीलॉग किसमें वैल्यू कितना में दिया है, पॉइंट में दिया हुआ, पॉइंट से शुरू हुआ है। तो आपको क्या करना है, नाउ यू आर गोइंग टू, जैसे हमने 2 वैल्यू लिखा था, 2.7183 को हमने 0.4343 कन्वर्ट किया ना। अभी बैक वापस हम लोग को होल नंबर में लाना है, मतलब एक्चुअल डिजिट में लाना है। फॉर दैट वी आर यूजिंग एंटीलॉग। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एंटीलॉग यूज कर रहे हैं, ठीक है। अभी नाउ आई एम गोइंग बैक टू एंटीलॉग। एंटीलॉग में देखिए, आप वैसे ही देखोगे एंटीलॉग में 86 का 8 फिर 6, 86 रो में देखोगे, 8 फर्स्ट कॉलम में देखोगे, 6 मीन डिफरेंस में देखोगे। दिस यू आर गोइंग टू सी इन मीन डिफरेंस, ठीक है। इसका जो वैल्यू वो आप ऐड करोगे, 0.8686, ये देखिए 0.86, ये लॉग है ना, यू हैव टू कम डाउन, यू हैव टू कम डाउन, दिस इज लॉग। लॉग का 2 पेज है, ठीक है, एंड एंटी लॉग का 2 पेज है। फर्स्ट लॉग देखिए, एंटी लॉग में पॉइंट से शुरू हो रहा है वैल्यू। हमारा वैल्यू क्या है, 0.8686 हमारा वैल्यू है, यू कैन सी 0.8686, ठीक है। I'll just write this. हाँ, 0.86 कहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिस इज 86, 0.86, 0.86 का क्या देखना है, 8 देखना है। यही लाइन में आप देखिए 0.86 का 0.86 का 8 कितना है, 79. 7379, ठीक है, 7379। आप प्लस करिए, 7379, 0.86 का 8 आपने यहाँ देख लिया। और आपको क्या देखना है, फोर्थ डिजिट कितना है, 6 है। 6 आप कहाँ देखोगे, Mean difference. मीन डिफरेंस में कितना है, देखिए 6 10. 10. 10, 10. तो कितना हुआ, 7389. हाँ 7389। 7389. 7389. समझ गए ना, कॉन्सेप्ट सेम है जैसे लॉग का बताया, सेम है। द ओनली डिफरेंस इज व्हाट, इन केस ऑफ एंटीलॉग इट स्टार्ट्स विद पॉइंट, पॉइंट वैल्यू से स्टार्ट होता है, 0.00 से लेके 0.99 तक, ठीक है। वहां पे 10 से लेकर 99 तक दिया है लॉग में। तो नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज यू आर कन्वर्टिंग बैक टू इट्स एक्चुअल वैल्यू। जैसे आपने 2 को एंटीलॉग में कन्वर्ट किया था इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ -1, उसके लिए हमने ये यूज किया था, ठीक है। अब देखिए कितना बताया वैल्यू, 7389. 7389. हाँ, तो इसका वैल्यू आपने सॉल्व कर दिया, ठीक है ना। 0.86 का 8 निकाला आपने एंटीलॉग में, और 6 मीन डिफरेंस यू हैव एडेड, एंड अल्टीमेटली यू हैव गॉट द फिगर 0 पॉइंट, सॉरी नॉट 0 पॉइंट, कितना मिला आपको, 7389. ओके 7389। 89. लेकिन अभी एक्चुअल वैल्यू में कन्वर्ट करना है ना। अभी ये 0 पॉइंट है, ये 0 पॉइंट क्यों दिया हुआ है यहाँ पे, ये 0 पॉइंट कितना डिजिट के बाद पॉइंट डालना, फॉर दैट इट इज गिवन, फॉर आफ्टर हाउ मेनी डिजिट्स यू हैव टू पुट पॉइंट। अभी 0 मींस आफ्टर हाउ मेनी डिजिट यू आर पुटिंग पॉइंट, 0 इज फॉर हाउ मेनी डिजिट, 1 2 3, कितना डिजिट के लिए यू हैव पुट 1, ठीक है। यहाँ पे 0 पॉइंट है, तो आप 0 पॉइंट मतलब एक डिजिट के बाद पॉइंट डालोगे, तो यहाँ पे 7 के बाद यू विल पुट पॉइंट। अगर यहाँ पे 1 पॉइंट होता तो 2. 73 पॉइंट होता, 2 पॉइंट होता तो
738.9. Very good. बस यही concept you 73.9. have to understand this concept. ठीक है, ये हो गया. This I am putting in bracket and 32 divided by 120. अभी देखिए रेसिप्रोकल. रेसिप्रोकल 7.389 ये वैल्यू आपको आया है. ठीक है, 7.389 डिवाइड बाय 1 है ना एक्चुअल वैल्यू देखा जाए तो. यहाँ पे इसको रेसिप्रोकेट करना है. रेसिप्रोकेट मतलब इसको उल्टा करके आपको वैल्यू निकालना है. मतलब 1 डिवाइडेड बाय 7.389. Reciprocate means you have to reverse the numerator and denominator. Now the value is 7.389 divided by 1. ऊपर में वो वैल्यू है, उसको आपको रेसिप्रोकेट करके यू हैव ट्राई फाइंड आउट द आंसर. अब इसका आंसर आपने निकाला. ये फाउंड द आंसर 135. 0.135. 0.135. ठीक है, अभी हमने टेबल वैल्यू. वी विल गो बैक टू द टेबल. राइट, देखो 0.13 आया ना. देखिए Yes, sir. -2 देखा आपने. ये मैंने बनाया ना. ये जो वैल्यू है e टू द पावर -2 है. देखो ये है e टू द पावर -2. e टू द पावर -2 इज 0.135. हमने कैलकुलेट करके वो निकाल दिया. ठीक है, दिस हाउ यू हैव टू कैलकुलेट. ठीक है, इनटू. अब आप इसको रेसिप्रोकेट क्लियर हो गया. अभी आप नॉर्मल फिगर में आ गए. डिवाइडेड बाय 32 डिवाइड बाय 120 विच इज इक्वल टू. इसको मल्टीप्लाई करना है 0.135. और एक डिजिट बता दीजिए. 4 डिजिट में लिखते हैं हम. 153 है ना. 0.135 into 32. The figure is 4.3296 divided by 120. So probability of getting 5 house fire is 0.036 something. मतलब 6-0. 3.6%. कितना है? 3.6% चांसेस. आपको इतना लिखने से बस है. दिस इज एनफ. तो क्या लिखोगे? देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी of that exactly 5 houses getting fire is equal to 0.036. Is that clear? Is that clear? मुझे सुनाई नहीं दे रहा है. बोल रहे हो आप लोग कुछ? Yes, Yes, ma'am. ma'am. बोल रहे हैं. Yes, ma'am. यस. तो ये पॉइजन आपको क्लियर हो गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. It's clear. Yes, ma'am. ठीक है, ये हो गया. ठीक है, सम. अभी देखिए इसमें 10% of the tool produced in certain manufacturing process turns out to be defective. ठीक है, 10% of the tool produced in certain manufacturing process turns out to be defective. Find the probability that in a sample of 10 tools selected at random, 10 tools selected at random, find the probability that exactly 2 will be defective. 2 will be defective by using binomial. इसमें दोनों पूछा है आपको. बाइनोमियल में भी करना है, पॉइजन में भी करना है. ठीक है. Yes, Okay, ma'am. ma'am. तो ये तो आप कर लोगे ना. Yes, ma'am. Yes, ma'am. सेम मेथड, सेम मॉडल सम, तो यू कैन डू दैट. ठीक है. नेक्स्ट वन, फिटिंग ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. हो गया. उसको ब्रेड के रंग पे दे दो. बच्चों को ब्रेड के रंग पे दे दो. करो उसमें जितना करो.
ठीक है, ये वाला सम आप सॉल्व करिए। दिस इज क्वेश्चन नंबर 24, राइट? Yes, ma'am. जैसे हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन देखा था ना, फिटिंग ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, हाउ टू फाइंड आउट, सेम मेथड हियर आल्सो एप्लीकेबल, फिटिंग ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? नेक्स्ट इज फिटिंग ऑफ पॉइजन distribution, fitting of Poisson distribution. Fitting of Poisson distribution, fitting of binomial distribution, what we have done, we have tried to compute the expected frequency, right, by using the terms of binomial. In case of binomial distribution, यहाँ पे we are going to find out the expected frequency by using the terms of Poisson distribution. Poisson distribution के terms हम use करके we can find out, okay? So let us see how to find out. जैसे आपने देखा सारे जितने भी terms है, all terms need to be multiplied by n. बाइनोमियल में जैसे देखा, सेम हियर आल्सो एप्लीकेबल, दैट यू हैव टू मल्टीप्लाई ऑल टर्म्स विद n, बट यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है, बार बार n से मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है, जो वैल्यू यू आर गेटिंग अकॉर्डिंगली यू कैन डू इट, ठीक है? लेट अस सी हाउ टू फाइंड द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इन केस ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, राइट? फॉर फर्स्ट वैल्यू, इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज नोन एज NPO. NPO मीन्स नील सक्सेस इज इक्वल टू, ये आपका फॉर्मूला है e टू द पावर -1, जीरो के लिए e टू द पावर -1, ठीक है, e टू द पावर -m। इसमें हम क्या करेंगे, वी विल मल्टीप्लाई n। अभी यहाँ पे n मल्टीप्लाई हो गया, द सेम वी आर गोइंग टू टेक p0, ठीक है, np0 विच इज इक्वल टू, नॉट 0, इट इज np1, इट इज np1, राइट डाउन np1, ठीक है, np1। क्या करना है, इसमें आपको m मल्टीप्लाई करना है, np0 multiplied by m, ठीक है, this into m। next one is np2 is equal to ये वाला np1, इसमें एक m मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, इसमें सेकंड m, इसमें दोनों m, this m and this m both are getting multiplied because this value you are taking, p1 में m is there, ठीक है, m by 2, यहाँ पे कितना है, 1 है तो m by 1। next one is np3 which is equal to np2 multiplied by m by 3। likewise np4 is equal to np3 multiplied by m by 4। तो दिस इट विल गो, जितना वैल्यूज है उतना आप इट विल गो, ठीक है, टिल npr। कैसे लिखोगे, npr मीन्स एक पीछे वाला, ठीक है, यहाँ पे जो r है, अभी यहाँ पे 4 है, अगर इफ यू आर फाइंडिंग आउट द लास्ट वन, जैसा अभी हमने 5 घर जलाला देखा, p5 लिखते हैं, तो दैट इज r-1 करोगे, ठीक है, तो r-1 इंटू m बाई r। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल डालने का जरूरत नहीं है, आप वो फॉर्मूला में n मल्टीप्लाई करके भी इंडिविजुअली कर सकते हैं, बट दिस इज द सिंपलेस्ट वन। तो दिस इज द फॉर्मूला इन ऑर्डर टू कंप्यूट द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। So this is your formula. We will see one sum here. एक sum करते हैं, then we will wind up. ठीक है?
Okay, so this is your sum. The following mistakes per page were observed in a book. 0 mistake, 1 mistake, 2 mistake, 3. ये क्या है? This is your actual value. ये आपका एक्चुअल वैल्यू है, मतलब क्या है? ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है ये, ठीक है। अभी आपको क्या निकालना है? एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालना है यूजिंग विच टेबल? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। यूजिंग पॉइजन विच मेथड? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो यू हैव टू फिट अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, राइट? So how you have to find out? I'll just write fitting of Poisson distribution. Already मैंने paste कर दिया है. Fitting of Poisson distribution. You just see the question figure. Okay, this is your question figure. Fitting the Poisson distribution. First of all, what you have to do is you have to find out the mean. क्योंकि हम लोगों को you can see that in all the formula, जो भी formula आपने देखा है, वो सारे formula में आपने क्या use किया है? M use किया है, right? You have used the value of M in all formulas. You have used the value of M. You have used the value of M. देखिए सब में आपने क्या यूज किया? M यूज किया है। तो विदाउट M वी कैन नॉट फाइंड आउट द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। हम विदाउट M एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी नहीं निकाल सकते। तो सिंस द यू हैव टू फाइंड आउट द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मीन। अभी देखिए क्वेश्चन में मीन का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, राइट? ठीक है, मीन का वैल्यू जो है इन क्वेश्चन इट इज नॉट गिवन। जस्ट एक एक्चुअल फिगर दिया हुआ है, नथिंग इज गिवन रिगार्डिंग मीन। तो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू फाइंड आउट द मीन यूजिंग द ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट द मीन, कंप्यूटेशन ऑफ मीन। जैसा आपने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मीन निकाला था ना, वैसा आपको निकालना है। ये क्या सीरीज है? ये डिस्क्रीट सीरीज है, ठीक है। यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू। डिस्क्रीट सीरीज में मैंने कल आपको एक्सप्लेन किया था, यू शुड नो दैट हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मीन। I'll just write x and f, ठीक है। मैं लिखती हूँ x and f लिखती हूँ। x and f मीन्स यही वैल्यू। लेट इसमें क्या दिया हुआ है? नंबर ऑफ मिस्टेक्स पर पेज लिखेंगे आप। लेट number of mistakes per page be x and number of times it occurs, let it be frequency. So this value I am going to write here, okay. In order to find out the mean, I am writing this 0 1 2 3 4, ठीक है। ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। एंड फ्रीक्वेंसी 211 90 19 5 एंड 0, ठीक है। 325 यूज योर n। तो हम सिंपल मेथड यूज कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे वैल्यू इतना बड़ा नहीं है। यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। ये हम यूज करते हैं ना मीन, यहाँ पे वी आर यूजिंग दिस m, ओके। तो मीन इज इक्वल टू व्हाट? मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ, डायरेक्ट मेथड मैं यूज कर रही हूँ, समेशन ऑफ fx डिवाइड बाय n। तो राइट डाउन fx, तो यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस टू, ये दोनों को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है fx, ठीक है। Let us see 211 into 0 is 0, 90 into 1 is 90, 19 into 2 is 38, 5 into 3 is 15। अगेन यहाँ पे 0 आ रहा है 0। इसका मतलब क्या है? There is nil mistake in 211 pages. There is one mistake in 90 pages, two mistake in 19 pages. Like this is the meaning how you can derive, ठीक है। तो summation of fx is equal to 143, 143, right? 143। तो यहाँ पे लिखेंगे आप 143, fx मिल गया 143 डिवाइडेड बाय n कितना है आपका? 325, 325। तो 143 डिवाइड बाय 325 आपका वैल्यू, मीन का वैल्यू 0.44. 0.44 ये मीन क्या है? दिस इज नथिंग बट दिस मीन विच इज इक्वल टू 0.4। आपको पता चल गया। अगर मीन नहीं दिया है तो आपको कैलकुलेट करना है। सिंस इट इज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन मतलब डिस्क्रीट सीरीज है, यहाँ पे कंटिन्यूअस नहीं आएगा, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस यू हैव टू फाइंड आउट दिस वैल्यू। तो ये आपको मिल गया 0.44, मीन का वैल्यू मिल गया 0.44, ठीक है। नाउ फर्स्ट व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू कंप्यूट फॉर p0। अभी p0 कंप्यूट करेंगे, फिर उसके साथ n को मल्टीप्लाई करेंगे एक एक करके। यू कैन फाइंड आउट ऑल वैल्यूज। तो हाउ टू फाइंड आउट p0? p0 का फॉर्मूला मैंने बताया आपको। एक टेबल मैंने आप लोगों को दिया था। In that table I have given you the formula for p0. The value is e to the power minus m. इसका वैल्यू आपको निकालना है। अभी e to the power minus m का वैल्यू कितना है? 2.7183 minus 0.44, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, मैं लिखूंगी, मैं जस्ट लिखूंगी बिकॉज मैंने आपको e टू द पावर 2
e to the power 2 करा दिया. अभी मैं उसको मैनुअली करना चाहती हूँ. हाउ आई हैव टू डू? टेल मी फास्ट. नहीं चलेगा, साइलेंट रहने से मैं नहीं लूंगी कल से. मैम वो जो रिकॉर्डिंग फॉर्मूला है एंटीलॉग वाला अप्लाई होगा. हाँ बताइए मैम, मुझे फॉर्म बताइए, डिक्टेट करिए हाउ टू राइट. ये मुझे कन्वर्ट करना है अभी. इसको e टू द पावर माइनस m को वैल्यू लेके आना है. जैसे हमने लास्ट टाइम वी ब्रॉट द वैल्यू, नो, e टू द पावर माइनस m हमने वैल्यू लाया 0.135. रिमेंबर ये लेके आया ना, e टू द पावर माइनस m 135 कैलकुलेट करके निकाला था ना हमने. अभी वैल्यू कितना है? e टू द पावर सॉरी e टू द पावर माइनस 0.44 वैल्यू है. तो माइनस 0.4 इज दिस, 44 इज दिस. तो कितना वैल्यू आएगा? 0.644. इतना आंसर आना चाहिए. तो ये आप मुझे मैनुअली बताइए. मैथ्स के फैकल्टी, साइंस के फैकल्टी होने से दे वोंट अलाउ यू टू टेक दिस टू द एग्जामिनेशन हॉल. ठीक है, तो यू शुड आप रखिए. इन केस अलाउड तो वेरी गुड, कम से कम आप क्रॉस चेक कर सकते हैं. अगर नहीं किया तो यू शुड नो हाउ टू फाइंड आउट मैनुअली यूजिंग लॉग एंड एंटी लॉग. ठीक है, दिस आई एम आस्किंग, टेलिंग यू. हाँ अब बताइए इसका वैल्यू मैं कैसे लिखूं? टेल मी. पिटाई करूंगी मैं सबको अभी, वर्चुअल पिटाई. Ma'am, reciprocal. यस, रेसिप्रोकल, एंटी लॉग. यस, 4 log. Yes, ma'am. 0.44 into log 2 point 2.7183. ओके, बस ये वैल्यू आपको करना है. ठीक है, इज इक्वल टू रेसिप्रोकेट एंटी लॉग 0.44. पहले इसको सॉल्व करना है ना. इसको आपने सॉल्व कर लिया था, फिर दोबारा करने का जरूरत है? नो. तो वही वैल्यू लिख दूं मैं. कितना आया था? 0.43, 0.4343. ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप. रेसिप्रोकेट एंटी लॉग 0. रेसिप्रोकेट 0.1910. 0.1910 ना. अभी आप एंटी लॉग में देखेंगे. हाँ, reciprocate. Now you are going to see in antilog. What is the value? Tell me. 1910. I'll just take you to the antilog में देखिएगा ना. 1919, right? 19 का 1 देखो, फोर्थ डिजिट 0 है ना. हेलो, Yes, ma'am. Yes, ma'am. फोर्थ डिजिट Yes, 0. ma'am. So we have to take 0.19. 0.19 यहाँ पे देखिए, 0.19 मिल गया आपको. ये दिस इज योर 0.19. 0.19 का 1, ये 0 है, ये 1 है. तो कितना आया? 1552. कितना आया? 1552. ओके, लेकिन फोर्थ डिजिट 0 है, तो 0 में कुछ 0 का वैल्यू यहाँ पे नहीं है. देखो मिन डिफरेंस में. तो हम लोगों को सिर्फ कितना लेना है? 19 का 1 लेना है. 0 इज 0. ठीक है, तो 19 का 1 इज 1552. लेट मी राइट दैट. 1552 कहाँ लिखूं? 1552. कितना डिजिट के बाद पॉइंट डालना है? आफ्टर हाउ मेनी डिजिट? 1 digit. ठीक है, ये आ गया. अब therefore e to the power minus 0.44. अभी रेसिप्रोकेट करना है इसको. रेसिप्रोकेट करने के लिए इज इक्वल टू 1.552. रेसिप्रोकेट करो 1 by 1.552. 0.6443. 0.6443. 0.644. 0.644 इज इक्वल टू 0.644. देखिए मिल गया हम लोगों को e टू द पावर माइनस m, राइट. सो e टू द पावर माइनस p0 का वैल्यू हम लोगों को मिल गया. ठीक है, therefore p0 is equal to
P0 is equal to 0.644. ठीक है? Now we are going to write down computation of expected frequency. ठीक है? n फर्स्ट क्या था n p0 ना, राइट डाउन p0 का Yes. वैल्यू क्या है n into p0. p0 का कितना है e Yes, ma'am. minus m, राइट? तो Yes. n कितना है 300 25. यस 325 into e to the power minus m कितना है 0.644. हाँ कितना आएगा 0.644. 209.40. 209.40. ठीक है, नेक्स्ट आप लिखोगे np1. फॉर्मूला क्या है np1 का np0 P1. into m, राइट? तो np0 का वैल्यू ये देखिए, अभी अगर आप अलग अलग करेंगे तो हर बार आपको m स्क्वायर सब करना पड़ेगा, इसमें जरूरत नहीं बिकॉज इट इज ऑलरेडी कैलकुलेटेड इन p0, सो ऑटोमेटिकली यू आर टेकिंग दैट वैल्यू, मतलब 209.40 into m का वैल्यू 0.44. ठीक है, इज इक्वल टू कितना आएगा, इंटू करो 92.13. 92.139. ओके, 136. np2. np2 is equal to np1 into m by 2, राइट? तो कितना लिखेंगे 92.13 into 0.44 divided by 2. टेल मी व्हाट इज द वैल्यू? Ma'am, हाँ 20.26. यस 646. ma'am, in NP1, 92.13 into m by 2 also, no? वेयर In NP1. np1 में np0 कर देना बच्चे, हमने ये कर दिया, देखिए मैम जहाँ पे आंसर आया ना 92.13 हाँ इंटू 0.44 डिवाइडेड बाई 2 होगा ना? नहीं होगा बच्चे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस m है, यहाँ पे डिवाइड बाय 1 आएगा, यहाँ पे डिवाइड बाय 2 आएगा, यहाँ पे डिवाइड बाय 0 है, समझ में आ रहा है? ओके हाँ लाइकवाइज जी जी यहाँ पे देखिए फॉर दिस, यहाँ पे ये डिवाइड बाय r आता है, देखिए ये 1 है तो यहाँ पे 1 आएगा, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है ना, ये 2 ये 2, ओके समझ में आ रहा है? यस मैम हाँ बताइए यहाँ पे वैल्यू 20.26. 20.26. 20.26. ठीक है, 20.26. हाँ नेक्स्ट क्या है np np3 इज इक्वल टू कितना, 4 तक दिया ना, 0 1 2 3 4 दिया है, जैसे क्वेश्चन में दिया उतना ही करना है आपको। हाँ np2 ये देखिए, इसमें ये लिया आपने, इसमें अभी ये ले रहे हो, ठीक है, इनटू m by 3, ठीक है। अभी देखिए अगर हम लोग वही फॉर्मूला करते तो हम लोग को एक्सपोनेंशियल डालना पड़ता और n को वापस बार बार, जैसे हमने बाइनोमियल में ऐड किया ना, लाइकवाइज वी हैव टू डू। तो यहाँ पे इट इज ऑलरेडी डिफाइंड, यू कैन टेक लाइक दिस। यहाँ पे देखिए 20.26 इंटू m इज 0.44 डिवाइड बाई 3, इसको डिवाइड करिए फिर इसको मल्टीप्लाई करिए 20.26 से, ठीक है। वैल्यू बताइए 2.97. 2.971 np, ये लास्ट वन है, ठीक है। आपको क्वेश्चन में कितना दिया है, 0 to 1 2 3 4 दिया है, तो 4 तक यू आर गोइंग टू फाइंड आउट। तो np4 में ये दिस वैल्यू यू आर गोइंग टू राइट np3 into m by 4 is equal to 2.97 into 0.44 divided by 4, 0.33 0.326. ठीक है, 33 ले लिया मैंने। हाँ 2.32. ये वैल्यू आपने लिख लिया। Yes, ma'am. हाँ
तो इसको हम टेबुलर फॉर्म में डाल देते हैं. देयरफॉर द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, जैसे हमने वहां पे तो वही कैलकुलेट कर लिया था ना, ये थोड़ा एक्स्ट्रा था तो अलग से हमने we have calculated. So therefore the expected frequencies of Poisson distribution are as follows. ठीक है. कैसे लिखोगे? x and f you are going to write 0 1 2 3 4. ठीक है. ये जो है ये आप लिखोगे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी. ठीक है. कितना वैल्यू आया था आपको बताइए. वो वैल्यू सारा यहाँ लिखिए आप. ठीक है. जैसे P4 का 0.33 है, 0 का 209.40 209.40 40 का 92.14 2 20.27 3 and 2.97 and last one is 0.33. समझ में आ गया आपको? Yes ma'am. अब इसको टोटल करिए. इट शुड बी नियर टू 325. 325.11. फ्रैक्शन डिफरेंस हो सकता है. ठीक है. 325.11. 325.1. तो इट इज नियर टू 11. 325. ठीक है. So this is how you have to compute the expected frequency. Poisson. शानो, दरवाजा खोल के आया. शानो, दरवाजा खोलो, कोई आया है ना? So you're clear with this, no? Yes, ma'am. ठीक है. I'll post some questions Yes, for your ma'am. reference. आप लोग उसको solve करिए. ठीक है. Okay, ma'am. तो ये मैंने मेन कॉन्सेप्ट आपको बता दिया. तो यू शुड ट्राई टू सॉल्व एज मेनी सम्स एज पॉसिबल. ठीक है. एक क्वेश्चन पेपर में एक पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का आया है. आई विल पोस्ट दैट सम. ट्राई टू सॉल्व एंड सेंड मी. ठीक है. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Shall we wind up now? Yes, ma'am. Okay, thank you. Yes, ma'am. Yes. Thank you. And time Thank बताओ. you, ma'am. Time I'll tell you. हाँ. आज एक मिनट. How many of you have joined? Let me check. 1 minute. Only 14 joined. Total कितना है? 28 है ना? Yes, ma'am. 28, ma'am. Yes, ma'am. 1 minute. I'll just check who all. One minute. हाँ, सब लाइन में रहिए. Okay, now you can disconnect. Huh?